Hello everyone. Starting our new topic, forfeiture of share. Forfeiture of share means cancellation of share. Forfeiture of share का मतलब cancellation of share. When company asked a money from his shareholders and shareholders were unable to pay the money, so after giving some time limit, company is cancelling them as a shareholder, and that shares they are taking back from them and again reissuing to the other person. So that only the topic today we are going to start, forfeiture and reissue of share. Clear? What is the topic today? Forfeiture of share and reissue of share. So forfeiture means cancellation of share. Reissue means resale again. We are reselling that shares to the shareholders again. So that is called reissue of share. First tell me meaning for both the concept is clear. What is forfeiture and what is reissue? Ma'am, repeat. Forfeiture means when the shareholders are not able to pay us the money. So we are taking back their shares. We are cancelling them as a shareholder. So that is called forfeiture of share. And reissue of share, that cancellation share what we have taken back, company is reselling that share again to the other shareholders. So that is called reissue. Suppose I am saying one shareholder A is there who is unable to pay first call and final call. So after that we have forfeited the share, means now we have cancelled the A as a shareholder and we are taking back that shares. So that is called forfeiture of share, and that shares again we are reselling to the other shareholder. So that is called reissue of share. Now clear what is forfeiture and what is reissue? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta. Repeat again. What? Now what Yes, entry please we have repeat to again. pass? We have to pass one entry for forfeiture, that is share capital account debit to share forfeiture to share to colon area. Simple we will be doing. क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture to colon area. दिस इज द एंट्री फॉर forfeiture ऑफ शेयर. जब हम शेयर किसी के छीन लेते हैं तो हम उसके पुराने शेयर होल्डर्स उसको कैंसिल करते हैं, तो शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड एंड forfeiture and colon area new concept will be going to open. forfeiture means the money he had paid. forfeiture में हम लिखेंगे जो पैसे वो दे चुके हैं वो हम forfeiture में लिखेंगे. colon area the money which he had not paid. colon area में हम वो पैसा लिखेंगे जो उसने नहीं दिया. जैसे सपोज देखो एक ए नाम का शेयर होल्डर है who is unable to pay 3 on allotment and 5 on call. तो उसने कितने पैसे नहीं दिए और एक शेयर आपका 10 रुपए का है. तो एक शेयर होल्डर है ए नाम का जो आपको 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के नहीं दे पा रहा और 5 रुपीज़ कॉल के नहीं दे पा रहा. शेयर कितने का है? 10 रुपीज़ का. और तो हम उस यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल में 10. जितना वो नहीं दे पा रहा, 8 रुपए नहीं दे पा रहा, तो वो किस में लिखेंगे? कॉलन एरियर में. अब 10 में से 8 माइनस कर लो, 2 रुपीज़ वो दे चुका होगा एप्लीकेशन मनी, तो वो हम किस में लिख देंगे? forfeiture में. तो forfeiture मीन्स द मनी विच ही हैड पेड, जो पैसे वो दे चुका है
वो हम फोर फीचर में लिखते हैं. कॉल इन एरियर द मनी विच ही हैड नॉट पेड, जो पैसा उसने नहीं दिया वो हम कॉल इन एरियर में लिखते हैं. एंड शेयर कैपिटल द मनी विच ही हैड आस्क्ड, जितने पैसे उसने मांगे हैं दैट वी आर राइटिंग इन शेयर कैपिटल. So four feature entry is clear to everyone. What will be the four feature entry? Repeat, beta. Yes, ma'am. Repeat. What is the journal entry for the four feature? Share capital account debit. Share monitor to call in error. Yes. So share four feature. What we are going to write, and share call in area. What we are going to write? Call in area. The money. Yes, the money which they had not paid. And four feature. Money which is already paid. Yes. So money which is already paid. So I am giving one example. Tell me. Be a shareholder holding 100 shares of 10 each. 3 on application, 3 on allotment, 4 on call. He is unable to pay 4 rupees on call. अब बताओ फोर फीचर में कितना आएगा और कॉल इन एरियर में कितना आएगा? And call in area 4. Yes. Four feature. And four feature 6. So this entry is clear to everyone now? Okay. So now we are starting reissue entry. Reissue means this we are again reselling. तो अभी हमने फोर फीचर की एंट्री क्या लिखी है? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोर फीचर and to call in area. This is the entry for four feature. Now we are passing a entry for reissue. Reissue का मतलब क्या है? We are selling these shares. जब हम ये shares बेचेंगे तो बताओ आपके पास मनी आएगी कि नहीं आएगी? Yes, ma'am. So here journal entry will be bank account debit to share capital. क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ठीक है. अब यहाँ कंसेप्ट समझो. आपने 10 वाला शेयर 8 में बेचा तो आप यहाँ लिखोगे 10 और यहाँ बैंक में कितना लिखोगे? 8. तो 10 रुपीज वाला शेयर आपने दोबारा जो बेचा 8 रुपए में बेचा. सो बैलेंस कहाँ बच रहा है? डेबिट में. अगर बैलेंस डेबिट में बचेगा तो आपको बैलेंस को किस नाम से लिखना पड़ेगा? शेयर फोर फीचर के नाम से. आया समझ में? अगर बैलेंस कहाँ बच रहा है? डेबिट में, तो आप कहाँ क्या लिखोगे? फोर फीचर के नाम से. अगर इसकी जगह ये एंट्री होती बैंक टू शेयर कैपिटल, 10 वाला शेयर आपका 12 में बिक जाता, क्योंकि आगे आपकी कंपनी की वैल्यू है, कितने में भी बिक सकता है. तो अगर 10 वाला शेयर आपका 12 में बिक जाता तो जितने में बिकेगा वो तो बैंक में आएगा. तो बैलेंस कहाँ बच रहा है अब? Credit side. So if balance is on credit side, so what we have to write? Security premium reserve. तो ये concept समझ में आया? If balance is on debit side, we have to write four feature, and if balance is on credit side, so we have to write security premium reserve. So this is clear? Yes, please. So now I am asking, we are doing the revision. Four feature की entry क्या होती है? What will be the entry for the four feature? Share capital account call in area. What we are writing in call in area?
company is not able to money not paid. And forfeiture Money will be paid. and share capital, money asked, whatever money asked by the company. Now reissue, what will be the entry for the reissue? Bank account debit. If balance is on debit side, what we are going to write? Share forfeiture. And if balance is on credit, then what we are going to write? Security premium reserve. After that, one more entry we have to pass, and that entry will be share forfeiture debit to capital reserve. अगर शेयर रीइशू होंगे तो ये एंट्री करनी ही करनी है. इसमें हम क्या करते हैं, ये जो फोरफीचर क्रेडिट वाला है, इस क्रेडिट वाले फोरफीचर को डेबिट वाले फोरफीचर से माइनस करते हैं. जैसे यहाँ 4 रुपीज़ है, तो 4 रुपीज़ आपका प्रॉफिट था और ये डेबिट वाला आपका लॉस हो गया 2 रुपीज़ का. तो अभी भी जो हमारा प्रॉफिट बचा, उस प्रॉफिट को हम कहाँ भेज देते हैं? कैपिटल रिजर्व में. तो क्रेडिट वाले फोरफीचर से डेबिट वाले फोरफीचर को माइनस करोगे, जो बचेगा उसको आप यहाँ भेज दोगे. लास्ट एंट्री. Clear now what will be the entry to transfer the profit in the capital reserve? The entry will be share forfeiture. Last entry we have to pass share forfeiture to capital reserve. अब इसमें अमाउंट कैसे निकालेंगे? फोरफीचर वाली एंट्री में हमेशा फोरफीचर क्या होगा? क्रेडिट. और रीइशू वाली एंट्री में फोरफीचर क्या होगा? डेबिट. तो दोनों की वैल्यू को माइनस कर देंगे. तो क्रेडिट वाले फोरफीचर को डेबिट वाले फोरफीचर से माइनस करोगे, जो बचेगा वो लास्ट वाली एंट्री में अमाउंट लिख दिया जाएगा. शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व. क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? Yes, ma'am. So now we are starting the numericals from the book. Concept I had explained. So open your question number 49. We are starting 49th question. See question number 49. What question is saying us? Woolen Limited issued 20,000 shares. Issue कितने करे हैं इनने? 20,000 shares of 100 each. 20 rupees premium मतलब 120. जिसमें से 25 आपको कहाँ मिलना है? एप्लीकेशन में. और 45 आपको कहाँ मिलना है? अलॉटमेंट में, जिसमें 20 रुपीज़ का प्रीमियम मिक्स है और 25 कैपिटल बन गई. फर्स्ट कॉल में 20 रुपीज़ एंड 30 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल. 18,000 शेयर्स अप्लाइड. हमने मांगे हैं 20, हमें मिले कितने हैं? 18,000. ऑल मनी वर रिसीव्ड एक्सेप्ट 400 शेयर होल्डर्स हैड नॉट पेड द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बुक. क्वेश्चन पहले समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा है केस बताओ? अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन की फुली सब्सक्राइब्ड? बेटा आपने इशू करें 20, आपको रिसीव्ड हुए 18. ओवर है अंडर है? अंडर सब्सक्रिप्शन.
तो अंडर सब्सक्रिप्शन में हम सम किससे करेंगे, 20,000 के से कि 18,000 से? 18,000। यस। 18,000। तो देखो अब आपकी पूरी ये 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 4 इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्रीज होंगी? 8 एंट्रीज। और एक फोर फीचर की एंट्री भी करने को कहा है, तो फोर फीचर की एक एंट्री हो जाएगी, मतलब 9। री इशू के बारे में उनने कुछ नहीं बोला, तो अब हमें कितनी एंट्रीज करनी है? टोटल 9 एंट्रीज करनी है। तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ध्यान से समझ लेना। पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नॉट शेयर कैपिटल। और आप 18,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 25 से। सेकेंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, सेम 18,000 इंटू 25। थर्ड एंट्री प्रीमियम की क्या होगी, प्लीज टेल। What will be the entry for premium, beta? Tell me. Share allotment account debit to share capital to security premium reserve. Yes. Share allotment account debit to share capital to security premium reserve. Share allotment में 18,000 into 45, शेयर कैपिटल में 18,000 इंटू 25 और 18,000 इंटू 20। इतना तो सिंपल सम है, सबको आता ही है। फोर्थ एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की मनी तो सबने दे दी है, इसलिए 18,000 इंटू 45। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? No, ma'am. Okay. After that, your next entry will be share first call to share capital 18,000 into 20। अब फर्स्ट कॉल में 400 लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो बताओ क्या ओपन हो जाएगा? Call in area। हाँ, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? What will be the entry? Bank account debit. Call in area debit। Call in area debit to share first call। फर्स्ट कॉल में यही आएगा 18,000 इंटू 20। 400 लोगों ने नहीं दिया, तो 400 इंटू 20 बैंक में बैलेंसिंग फिगर। आया समझ में इतना? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? No, ma'am। No, ma'am। देन सेकेंड कॉल की ड्यू की एंट्री क्या होगी बेटा? शेयर second call debit to share capital 18,000 into 30। और जब इसके पैसे मिलने की चांस आई, तो बैंक कॉल इन एरियर टू शेयर सेकेंड कॉल 18,000 into 30, 400 into 30 and balancing figure. This much is clear to everyone? Yes, ma'am। इतना जो हम पुराना करते हैं, दैट ओनली वी हैव डन, नथिंग न्यू। अब हमें फोर फीचर की एंट्री पास करनी है। तो फोर फीचर की एंट्री हमने क्या सीखी है? शेयर कैपिटल टू कॉल इन एरियर टू फोर फीचर। शेयर कैपिटल कितने शेयर फोरफीट हो रहे हैं? 400।
और आप सारे रुपए मांग चुके हो, प्रीमियम हटाकर करेंगे क्योंकि प्रीमियम वो दे चुका है। अगर वो प्रीमियम ऑलरेडी दे चुका है तो हम फोरफीचर की एंट्री में प्रीमियम को शो भी नहीं करेंगे, इसलिए हमने प्रीमियम हटा दिया। अब कॉल इन एरियर उसने क्या क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो दोनों को प्लस कर लो और इंटू 50 कर लो। 4 5 से 20 मतलब 20,000 कॉल इन एरियर में आ जाएंगे। अब इसमें से इसको माइनस करो, जो बचा वो क्या आ जाएगा, फोरफीचर। आया समझ में कि नहीं आया? Last entry we have to do for the forfeiture. Forfeiture entry, just now we have studied share capital to call in arrear to forfeiture. So same entry I had written. बट इसमें हम मल्टीप्लिकेशन कितने से करेंगे, जितने शेयर होल्डर्स पैसे नहीं दे रहे थे। क्वेश्चन में कहा है 400 वर अनेबल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो 400 शेयर्स। अब आपका शेयर 100 का 20 रुपीज़ प्रीमियम है, तो आप 120 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि प्रीमियम वो दे चुका है। अगर वो प्रीमियम दे चुका है तो हम प्रीमियम कहीं लिखेंगे ही नहीं। अगर वो प्रीमियम नहीं देता तो हम प्रीमियम को भी डेबिट कर देते। आया समझ में क्या रूल बताया मैंने? इफ़ प्रीमियम ऑलरेडी पेड सो इट विल नॉट बी गोइंग टू ओपन, एंड इफ प्रीमियम नॉट पेड देन इट विल बी गोइंग टू ओपन डेबिट साइड। तो हमारी एंट्री होती शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू कॉल इन एरियर, टू फोरफीचर। बट यहाँ प्रीमियम दे चुका है इसलिए हमने प्रीमियम लिखा ही नहीं। तो शेयर कैपिटल में 400 शेयर्स हैं और हमारा एक शेयर की वैल्यू 100 है, हम पूरा मांग चुके हैं इसलिए इंटू 100 करा। कॉल इन एरियर में जितना उसने नहीं दिया, तो उसने फर्स्ट कॉल का 20 नहीं दिया, फाइनल कॉल का 30 नहीं दिया, तो 400 इंटू 50 करो तो 20,000। बैलेंसिंग फिगर निकालोगे वो फोरफीचर का अमाउंट आ जाएगा। अब आया समझ में कि नहीं आया? Yes, miss. Okay. Yes, ma'am. So now you only have to try. I am discussing the question with you all. Jupiter Furniture Limited issued 20,000 equity shares of 10 each, 5 rupees premium. तो टोटल शेयर की वैल्यू हो गई है आपकी 15 रुपीज़। 4 on application, 5 on, 9 on allotment, 2 on first and final call. 500 shareholder paid only the application money. Sona, who had 200 shares, failed to pay final call money. Share of both the shareholders were forfeited. Journalize the above transaction. Now who will be going to solve this sum? बताओ कौन कर सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व? देखो मैं हेल्प कर रही हूँ। 20,000 के शेयर्स हैं, एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज़ का। 5 रुपीज़ प्रीमियम मतलब 15 का शेयर बन गया, जिसमें से 4 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 9 अलॉटमेंट, तो प्रीमियम ये है तो कैपिटल ये बचा, और आपका 2 रुपीज़ फर्स्ट ऑन फाइनल कॉल, ये हो गया। जतिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर हैं, इसने बस एप्लीकेशन मनी पे करी है, एप्लीकेशन पे करी है, बाकी कुछ नहीं पे करा। सोना एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर हैं, इसने बस फाइनल कॉल नहीं दी। दोनों के शेयर फोरफीट करना है। तो देखो अब हमें समझो करना है, देखना है किसने क्या दिया। तो एप्लीकेशन सबने दी है, बताओ एप्लीकेशन की मनी सबने पे करी है कि नहीं करी है? Yes, ma'am. ठीक है, एप्लीकेशन ऑल हैड पेड, सो सिंपल एंट्री वी आर गोइंग टू डू, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 into 4, share application to share capital
20,000 into 4। बोलो ये सिचुएशन, ये एंट्री में किसी को डाउट? अलॉटमेंट कितनों ने नहीं दिया? बताओ, अलॉटमेंट कितने लोगों ने पे नहीं किया? 500. Yes, J means 500 had unable to pay the allotment money. So क्योंकि इस J ने बस एप्लीकेशन दी है, that means इसने अलॉटमेंट भी नहीं दी होगी और इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी। और जो S सोना है उसने बस सेकंड कॉल नहीं दी है, ये तो दे दी है। ठीक है, तो हम ड्यू तो पूरे से करेंगे। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू SPR 20,000 into 9। शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 20,000 into 4। और प्रीमियम में कितना आ जाएगा? 20,000 into 5। इस एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब जब रिसीव कर रहे हैं तो 500 लोग पैसे नहीं दे रहे, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे पूरा लिखेंगे 20,000 into 9, जिसमें से 500 लोगों ने 9 रुपीज नहीं दिए, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर खुल जाएगा। बोलिए इस एंट्री में भी कोई डाउट? No, ma'am. एवरीवन इट इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री होगी, तो फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 20,000 into 2। और यहाँ पे कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए? बोलिए कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए? 700. यस, जे ने भी नहीं दिया, एस ने भी नहीं दिया, तो 700 into 2 and this is our balancing figure। यहाँ तक तो हम सिंपल जो सम करते आ रहे हैं वही किया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? इट्स क्लियर ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now our last entry for the forfeiture। forfeiture की एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट टू forfeiture टू कॉल इन एरियर। अभी मैंने एक रूल बताया था, प्रीमियम अगर खुलेगा कि नहीं खुलेगा? What rule I said? If premium not paid, then premium will be going to open. If premium paid, then it will not be going to open. तो ये जो J है 500 शेयर्स वाला, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया, तो बोलो ओपन होगा कि नहीं होगा? No, ma'am. नहीं होगा। Yes, ma'am. It will be going to open Yes, ma'am. because उसने पैसे नहीं दिए हैं, so it will be going to open। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी ओपन होगा। टोटल दोनों के शेयर मिला लो तो 700 शेयर फॉरफीट हो रहे हैं, मगर प्रीमियम बस जे ने नहीं दिया है, तो प्रीमियम बस उसका आएगा, क्योंकि सोना ने तो बस फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी है, अलॉटमेंट तो दे चुकी है, तो वो प्रीमियम भी दे चुकी है। कॉल इन एरियर का एक सिंपल तरीका बता रही हूँ। आपने यहाँ पे ये 4500 का कॉल इन एरियर खोला और यहाँ आपने 1400 का कॉल इन एरियर खोला, दोनों कॉल इन एरियर प्लस करके यहाँ लिख लीजिए और इसको बैलेंसिंग फिगर में निकाल लिया करो।
आया समझ में क्या करना है? फिर से एक बार फोर फीचर की एंट्री सुन लीजिए। फोर फीचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इफ प्रीमियम नॉट पेड देन प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 2 फोर फीचर 2 कॉलन एरियर। तो प्रीमियम शेयर कैपिटल में पूरे 2 लोग नहीं दे रहे हैं, 2 लोग नहीं दे रहे हैं तो दोनों को प्लस कर लिया। तो दोनों को प्लस करने के बाद टोटल आ गए 700 लोग नहीं दे रहे हैं, तो हमने 700 लिख लिया इंटू 10। एक शेयर 10 का है। प्रीमियम कितने लोग नहीं दे रहे हैं? मैंने यहाँ एक गलती करी, किसी ने मुझे बताया नहीं। प्रीमियम 2 रुपए का नहीं है मिस, प्रीमियम 5 रुपए का है। 5 रुपीज का है ना प्रीमियम। तो प्रीमियम जितनों ने प्रीमियम नहीं दिया उतना प्रीमियम हम लिख देंगे। तो 500 लोगों ने अलॉटमेंट नहीं दी थी, मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया, तो हमने बस प्रीमियम 500 वालों से मल्टीप्लाई करा। 200 वालों ने तो बस फाइनल कॉल नहीं दिया है, मतलब प्रीमियम तो वो दे चुके हैं, इसीलिए हमने प्रीमियम बस 500 से किया। कॉल इन एरियर जितना ओपन हुआ है उनको प्लस करके लिख दिया और फोर फीचर बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Keep studying.